નમસ્કાર, હું છું બિરેન અને આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. મૂળ દુબઈની કંપની કેમિટેક હાઉસના વડોદરાના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ દ્વારા કંપનીએ કોન્ટ્રાક્ટ થકી અન્ય કંપનીઓને સોંપેલા સિવિલ ફાઉન્ડેશનના ગ્રાઉન્ડ ઇમ્પ્રુવમેન્ટની કરેલી ક્ષતિયુક્ત કામગીરી ખરાઈ કરા હોવાથી જ કંપની કર્મચારીઓ સાથે મેળાપીપળાના કંપનીને નુકસાન પહોંચાડવાના મામલે જ જેપી રોડ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર કહી શકાય કે દુબઈની જે આ કંપની છે તે જે વડોદરાના તાંદલજા ખાતે જે ભાડે ઓફિસ આવેલી છે તેની કંપનીમાં છેલ્લા 11 વર્ષથી વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ પદ પર શહજાદ અનવર અંસારી ફરજ બજાવે છે. તેઓ દ્વારા જેપી રોડ પોલીસ સ્ટેશને કેલર ગ્રાઉન્ડ એન્જિનિયરિંગ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામની જે કંપની છે તેથી જ તથા કેમિટેક હાઉસ પૂર્વકર્મી અહેમદ રઝાના વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે, જેમાં શહજાદ અનવર અંસારી દ્વારા આજે આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. તેઓએ કંપનીને એચપીસીએલ રાજસ્થાની રિફાઇનરી લિમિટેડ દ્વારા કચ્છના મુદ્રા સમુદ્ર તટે ટર્મિનલ ટેન્ક બનાવવા માટે જ ગ્રાઉન્ડ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ માટેની કામગીરી સબકોન્ટ્રાક્ટરોને આપેલ છે, ત્યારે કામ પૂરું થયેલું તેની ગુણવત્તા ચકાસણી તેમજ લોડ ટેસ્ટ બાદ ચૂકવણી કરવાની જ વાત થયેલ છે, જેમાં જે કામમાં કેલર ગ્રાઉન્ડ એન્જિનિયરિંગ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા કેમિટેક કંપની ટેકનિકલ એક્સપર્ટ્સની માંગણી કરતા જ કંપની દ્વારા તે કર્મચારીને રેસિડેન્સ કન્સ્ટ્રક્ટર મેનેજર તેમજ એન્જિનિયરિંગ ઇન્ચાર્જ તરીકે અહેમદ રજાની નિમણૂક કરેલ હતી. ત્યારે જે કેલર ગ્રાઉન્ડ એન્જિનિયરિંગ કંપની દ્વારા સ્ટોન બ્લેન કટિંગ જેવી નીચે 15 મીટરની 800 mm ડાયામીટરની કોલમ પૂર્ણ કરી, એટલે કે જેની ગુણવત્તાની ચકાસણી બાકી છે, ત્યારે અહેમદ રજા 31/1/2023ના રોજ કંપનીમાંથી રાજીનામું આપી અને જતા રહેલ છે, જેથી ચકાસણીના રિપોર્ટ વિના મેળાપીપળાની કંપનીને નુકસાન કરેલ હોય ત્યારે ક્ષતિયુક્ત આ કામગીરીને કારણે જ ભવિષ્યમાં અહીં ઊભી સ્ટોરેજ ટેન્કમાં સંગ્રહિત 72 કરોડ લીટર ક્રૂડ ઓઇલનું સમુદ્રમાં વહેતું થાય તો પર્યાવરણ અને જળચર જીવોની આસપાસને નુકસાન થવાની શક્યતા છે. તેની સાથે જ આ બંને વિરુદ્ધ જેપી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ પણ કરાઈ છે અને શહજાદ અંસારીને તેવું જ જણાવ્યું છે, લેખિતમાં જાણ પણ કરી હોવાનું આવું જે હોય તેને જ પોલીસ કમિશનરને પણ લેખિતમાં જાણ કરવામાં આવી છે, ત્યારે શહજાદ અંસારીએ જણાવ્યું છે. इसके लिए कैमिटेक डीएमसीसी को एक प्रोजेक्ट मिला हुआ था एचआरएल एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड से. उस प्रोजेक्ट मुद्रा में उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे थे. एग्जीक्यूट करने के लिए हमने वहाँ हमारा एक आरसीएम और पूरी टीम डाली है. साथ में केलर इंजीनियर ग्राउंड इंजीनियरिंग कंपनी करके एक ये बेसिकली सिंगापुर की कंपनी है और एक्सपर्ट है ग्राउंड इम्प्रूवमेंट में, उसको डाला था एंड दे वर वर्किंग फाइन देयर. सडनली 31 जनवरी को हमारा आरसीएम जो है वहाँ से चला गया है और ही हैज़ नॉट हैंडेड ओवर द टेस्ट रिपोर्ट्स एंड अदर रिपोर्ट्स, बट ये बिल सर्टिफाई करके गया हुआ है. तो हमको डाउट आ रहा है कि मतलब ये कि उसने कुछ हमसे छुपाया है, तो हम चाहते हैं कि वो वापस आए, आके अपने सारे बिल वापस सर्टिफाई करके जाए. इसके लिए वो कंप्लेंट की है. सर, आपने अभी बताया था कि एनवायरनमेंट को नुकसान होने की संभावना है, तो किस प्रकार की ये संभावना आपको लग रही है और क्यों? एक्चुअली साइट ये जो साइट है मुंद्रा में हमको जो मिली है ये नेचुरल लैंड नहीं है. ये एक अडानी ने जो समुद्र का एरिया है उसमें से समुद्र से सैंड निकाल के 15 मीटर तक सैंड की फिलिंग करके एक लैंड डेवलप करके एचआरएल को दी है. ये एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी का शॉर्ट नेम एचआरएल. तो उसके लिए इसमें स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है और स्पेशलाइज्ड काम है स्टेबिलिटी करने में. उसके लिए केलर को हमने लगाया, अपना आरसीएम को लगाया, बट अगर किसी वजह से ये वर्क बराबर नहीं हुआ होगा तो कल इसके ऊपर जो भी स्ट्रक्चर खड़ा होने वाला है, जो के टैंक्स हैं, बड़े बड़े टैंक्स हैं, अगर वो फेल होते हैं तो बहुत बड़ा एनवायरमेंटल हजार्ड होने का चांस है. ये 60,000 KL का एक टैंक है. ऐसे करके 12 टैंक हैं. 7,20,000 क्यूबिक मीटर बनता है, जो 72 करोड़ लीटर होता है. कौन से इलाके में स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है? ये मुंद्रा में अडानी ने एक लैंड दी है और वहाँ पे IOCL का एक टर्मिनल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, HMEL का एक टर्मिनल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. तो आगे जगह नहीं थी तो इन्होंने मतलब ये है कि वो आर्टिफिशियल लैंड बना के क्रिएट करके हमको दी है. तो उसमें वो 15 मीटर का फिलिंग है. वो 15 मीटर की फिलिंग में स्टेबिलिटी इज़ नॉट दैट ईजी थिंग टू कम.
फॉर दिस टाइम। किसके खिलाफ आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई? ये दो पार्टी हैं, एक मेरा कॉन्ट्रैक्टर है केलर, जो केलर ग्राउंड इम्प्रूवमेंट है, बेसिकली इंडियन काउंटर पार्ट को काम दिया है, बट ये कंपनी सिंगापुर की है। प्लस मेरा RCM जो रेजिडेंट कंस्ट्रक्शन मैनेजर हमने वहाँ रखा, जिसकी जिम्मेदारी थी ये सारे काम का क्वालिटी ये सब देखने का, इन दोनों के खिलाफ डाला है। आपको ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने आपके साथ फ्रॉड किया है, तो इससे आपकी कंपनी को कितना नुकसान पहुँचेगा? मेरी कंपनी को नुकसान एक अलग चीज़ है, बट देश को नुकसान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट EPCC है। EPCC मीन्स इंजीनियरिंग भी मुझे करना है, प्रिक्योरमेंट भी मेरा है, कंस्ट्रक्शन भी मेरा है, और कमीशनिंग भी मुझे करना, चालू करके देना है। तो मैंने वो काम अभी आधे पे करके मेरा ऑर्डर टर्मिनेट हो गया है। वो आधा जब तक पूरी तरह सर्टिफाइड नहीं हो जाएगा कि ठीक हुआ है, तब तक दूसरा उसके ऊपर लगाया नहीं जा सकता। तो मैं चाहता हूँ पहले वो सर्टिफाई हो जाए, इसलिए इन दोनों पार्टियों को मैंने कंप्लेंट किया है, दे शुड कम एंड गेट दिस इशू रिजॉल्व। ऑर्डर टर्मिनेट के पीछे क्या कारण है? वो हमारे इंटरनल इश्यूज़ हैं, हम HRL के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये आपने अर्जी दी है, इसमें आपका या कंपनी का क्या हित है? इस अर्जी से कंपनी का हित नहीं है, बेसिकली देश का हित है कि जो काम वहाँ हुआ है वो सर्टिफाई हो जाए। अगर वो सर्टिफाई हो जाए तो अगले कॉन्ट्रैक्टर को, अगले आदमी को आके काम करने के लिए आसानी होगा। अगर ये नहीं हुआ, मिसमैच रहा, तो कल कॉलेप्स होगा, और कॉलेप्स हुआ तो डिजास्टर भी होगा। अभी आपने सामने दो लोगों के सामने ये कंप्लेंट किया है, आपको क्या लगता है इनके पीछे? देखिए, कंप्लेंट से खुद पता लगता है कि दोनों आदमियों ने कुछ गोलमाल किया है, जिसकी वजह से तकलीफ आई है।